हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉन्चपैड एजुकेशन। प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਵਨ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਰਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। तो तुसी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਐਂਡ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚਪੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ 7 ਰਿਵਰਸ ਨਾਲ ਡਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਮੀਨਸ ਰਿਵਰਸ, ਸਪਤ ਮੀਨਸ 7। ਕਿਹੜੀ 7 ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇੰਦਰ, ਉਹਦੀ 5 ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਸਵਤੀ। ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਨਾਸ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਡਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 7 ਰਿਵਰਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਗਿਵਸ ਅਸ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਉਹ ਡਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਐਂਡ ਜੇਲਮ ਟੁਗੇਦਰ ਵਿਦ ਸਿੰਧੂ ਐਜ਼ ਦ 6th ਰਿਵਰ। ਜਿਹੜੀ 6th ਰਿਵਰ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣ ਮਹਾਭਾਰਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। In epics and Puranas, Punjab has been referred to as Panchanada, meaning the land of 5 rivers. ठीक है, जो ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ epics and Purans ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਨਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, means ਇੱਕ ਐਸਾ land ਜਿਹੜਾ land of 5 rivers ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 river means 5 ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ land ਨੂੰ drain ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। The name ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? 2 ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡਸ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ? ਪੰਜ means 5 and ਆਬ means water। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਡਰੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਐਂਡ ਜੇਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5 ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਟ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਰਿਵਰਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਰਾਵੀ ਐਂਡ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ % ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 3 ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਰਿਵਰਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਰਾਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਰਿਵਰਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਐਂਡ ਸਤਲੁਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਨੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲਮ ਐਂਡ ਚਨਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਰਿਵਰ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਜਦੋਂ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰ ਰਿਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸੀਜ਼ਨਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੈਰਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਰਿਵਰਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਰਿਵਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵਰ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਨਸਰੋਵਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਂਗੇਸਟ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ। याद रखियो भाखड़ा नंगल डैम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 2nd ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਮ ਹੈ।
ठीक है। इस तो इलावा जो साडा फर्स्ट है, कोई दस सकता है कि फर्स्ट साडा हाईएस्ट डैम केड़ा है? ठीक है, दैट इज तिहरी डैम। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे है ते केड़ी रिवर दे उत्ते है? सतलुज दे उत्ते। ठीक है, एंटर्स पंजाब, तुझे याद रखना है केड़ी जेड़ी रिवर है वो पंजाब विच किथों एंटर करती है। ठीक है, सो सतलुज जेड़ी रिवर है वो पंजाब च एंटर करती है वाया रोपड़। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है त्रिमाद। त्रिमाद हुंदा जदों साडी तीन रिवर्स मिलदियां है। ठीक है, उस टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ त्रिमाद कहने आ। तो तुसी याद रखना है कि त्रिमाद जेड़ा है वो केड़ी तीन रिवर्स ਨਾਲ मिलके बनया है? रावी, चिनाब एंड झेलम। ओके, अदर साडी टर्म है पंजनाद। पंजनाद है त्रिमाद प्लस चिनाब प्लस ब्यास। ठीक है, ये टर्म्स तुसी जेड़ियां है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ਲਈ याद रखनियां है। सतलुज जेड़ी है वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पंजाब है, ऑलरेडी तुहानू मैं दस चुकी है। जेडे साडे इंडिया पाकिस्तान दे इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उन्हों केड़ी रिवर मार्क करती है? वो सतलुज दे थ्रू ही मार्क होती है, फिरोजपुर वाले एरिया तो। ठीक है, मीट्स ब्यास एट हरीके पतन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जेडी सतलुज है वो ब्यास नू किथे मिलती है? हरीके पतन। ठीक है, मेजर सिटी जेडी साडी बैंक ऑफ सतलुज ते है वो केड़ी है? रूपनगर, जिन्हों आपां रोपड़ भी कहने हैं। ठीक है, सो ये जेडे सतलुज दैट इज ऑल अबाउट सतलुज जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यास। ब्यास जेडी है, ब्यास किथों ओरिजिनेट करती है? ब्यास कुंड, किथे नियर कुल्लू हिल्स। ठीक है, ये पंजाब च किथों एंटर करती है? हुशियारपुर। हुशियारपुर तो तुहानू कुछ याद आया होगा, प्रीवियस लेक्चर च तुहानू रिवाइज कराया सी। सब तो ज्यादा लिटरेट जेडी डिस्ट्रिक्ट है वो हुशियारपुर है। हुशियारपुर, होशियार लोग। ठीक है, एंड मैक्सिमम लिटरेसी अमंग मेल्स एंड फीमेल्स भी किथे है? हुशियारपुर। ठीक है, सो तुसी रिकॉल करने की कोशिश करो कि मिनिमम लिटरेसी जेडी है वो केडी डिस्ट्रिक्ट विच है। ठीक है, हुशियारपुर दे नाल ही तुहानू पढ़ाया सीगा मैं। ठीक है, सो ये जेडी है पंजाब च एंटर करती है फ्रॉम हुशियारपुर। जेडी आपां सतलुज पढ़ी सी वो किथों एंटर करती सीगी? याद करो। ठीक है, ज्वाइन सतलुज नियर हरीके ये जेडी है सतलुज नु ज्वाइन करती है किथे? हरीके पतन ते। ठीक है, जेडी ट्रिब्यूटरीज ने, ट्रिब्यूटरीज वास्ते मैं तुहानू अलग तो इस तरह बना के दिता है ताकि तुहानू याद रहे कि ये जेडी राइट साइड ते ने ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ने, जेडी लेफ्ट साइड ते ने ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ने। ऊ गज, चाकी एंड लंबादुन, एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज केड़ी है? पर्वती एंड सुकेतरी। ठीक है, सो ये जेडियां है ट्रिब्यूटरीज ने इंपॉर्टेंट ब्यास रिवर दियां। ठीक है, सो ब्यास वास्ते आप जेडी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ते हाँ कि ब्यास जेडी रिवर है ओदे उत्ते जेडी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है ओदे वास्ते तुसी एक लाइन याद रखनी है, होशियार तरन कोट पाके गुरु जी नाल अमृतसर गया। ठीक है, होशियार तरन जेड़ा है तैयार होके सूट बूट पाके गुरु जी नाल अमृतसर गया। होशियार तो तुसी याद रखना है होशियारपुर, तरन तो तुसी याद रखना है तरन तारण, एंड कोट तो तुसी याद रखना है पठानकोट, ये तो तुसी याद रखना है कपूरथला एंड अमृतसर। ठीक है, तो जेडी डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट ने वो केड़ियां-केड़ियां ने? होशियारपुर, तरन तारण, पठानकोट, कपूरथला एंड अमृतसर। बिकॉज तुसी एग्जाम लिए याद रखना है कि रिवर्स दे जेडी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वो केड़ियां ने। ठीक है, नेक्स्ट है रावी। रावी किथों ओरिजिनेट करती है? रोहतांग पास, किथे? हिमाचल प्रदेश विच। ये ज्वाइन करती है झेलम, चिनाब एंड इज कॉल्ड त्रिमाब। त्रिमाब टर्म तुहानू मैं दसी सी जदों रावी, झेलम एंड चिनाब आपस विच इकट्ठियां मिलदियां है। त्रिमाब मीन्स तीन रिवर्स, थ्री मीन्स तीन एंड आब मीन्स वाटर बॉडीज। ठीक है, सो जदों आ तीन ज्वाइन करदियां है तां उहनू असीं त्रिमाब बोलते हैं। इहदे उत्ते जिहड़ा डैम है वो केड़ा है? थेन डैम, जिन्हों असीं रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। याद रखियो, रंजीत सागर डैम का दूसरा नेम की है? थेन डैम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रावी। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स केड़ियां ने जेडी जिन्हों रावी ड्रेन करदी है? इहदे वास्ते तुसीं एक होर लाइन याद रखनी है, रवि कोट पाके गुरु जी नाल अमृतसर गया। पहले कौन गया सीगा? होशियार तरन गया सी। हुण कौन जा रहा है? रावी पढ़ रहे हैं हाँ, रवि जा रहा है कोट पाके गुरु जी नाल अमृतसर। सो रवि मीन्स रावी रिवर जो है वो केड़े-केड़े डिस्ट्रिक्ट्स नु ड्रेन करती है? कोट तो पठानकोट, गुरु तो गुरदासपुर एंड अमृतसर तो अमृतसर। ठीक है, ये सब तो ईजीएस्ट वे है कि तुहानू जेड़ियां है वो याद रहनगियां कि केड़ी रिवर्स जेड़ियां है वो केड़ी डिस्ट्रिक्ट्स नु ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, सो याद रखियो रावी जदों असीं पढ़दे हां तां असीं रवि नू लेके जा रहे हैं किथे? कोट पाके गुरु जी नाल अमृतसर। जदों असीं
पिछली रिवर कवर की है तो मैं तुहानू किहड़ी टर्म कही है, हुशियार तरन। ओके, हुशियारपुर, तरन तारण, कपूरथला। ठीक है, नेक्स्ट है सीजनल रिवर ऑफ पंजाब। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰਸ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੇਨਫॉल ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਰਿਵਰ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ओरिजिनेट ਹੋ ਕੇ पंजाब विच चंडीगढ़ तो फ्लो करते हुए ये राजस्थान में जाके डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, राजस्थान जो साडा थार डेजर्ट है, ड्राई थार डेजर्ट है, उत्थे जाके ये सीप कर जाती है एंड उत्थे जाके डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, घग्गर रिवर इज एपीमेरल रिवर विद द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। रिवर जिहड़ी है ओरिजिनेट कित्थों करती है? शिवालिक रेंज इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश स्टेट। ठीक है, इट पासिस थ्रू चंडीगढ़, चंडीगढ़ गौर्ज तो एंटर पंजाब एंटर करती है एंड पासिस थ्रू इंपॉर्टेंट केड़ी डिस्ट्रिक्ट्स तो पास करती है? पटियाला, संगरूर। ठीक है, इट इवेंचुअली ड्राइज अप इन ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट। जो राजस्थान विच एंटर करती है उत्थे जाके ये डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सीजनल रिवर घग्गर जिहड़ी आपां पंजाब दे अंडर पढ़दे हां। ठीक है, हुण ये कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट नेम्स ने जिहड़े साडे रिगवेदी टाइम्स दे विच ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇਮ ਸੀ ਸਤਲੁਤਰੀ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਵਿਪਾਸ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਾਰੂਸ਼ਨੀ, ਚਨਾਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕਨੀ, ਜੇਲਮ ਵਿਤਾਸਾ, इंदस सिंधु, सरस्वती सरुस्ती। ठीक है, सो ये तुसी इथों याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनू मिस नहीं करना। ओके, ये एंशिएंट नेम्स ने प्रेजेंट डे रिवर्स से। ठीक है, नेक्स्ट है जोग्राफिकल रीजन। पंजाब जेड़ा है जोग्राफिकल मेन 3 जोग्राफिकल रीजन्स ने जेड़े मैं तुहानू पढ़ाए सीगे, मालवा, माझा एंड दुआबा। ठीक है, द एरियाज फॉलोइंग बिटवीन द 2 रिवर्स। दुआब की हुंदा है बेसिकली, देखो दो साइड ते जो रिवर फ्लो करती है, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆਬ। ठीक है, दो आब, दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स पानी, मतलब ऐसा एरिया ਜਿਹੜਾ दो रिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट साडा टॉपिक है ਦੁਆਬ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਆਬ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬ ਹੈ, ਦੁਆਬ मीन्स एक ऐसा रीजन ਜਿਹੜਾ दो रिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ करदा है। दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स वाटर बॉडीज। ठीक है, सो दुआब की है? फर्स्ट है बिस्ट दुआब। बिस्ट दुआब जिहड़ा है वो केड़ी 2 रिवर्स दे विच लाई करदा है? सतलुज एंड ब्यास। बड़ी दुआब केड़ी 2 रिवर्स दे विच लाई करदा है? ब्यास एंड रावी। छज दुआब एंड छज दुआब केड़ी 2 रिवर्स दे विच लाई करदा है? चनाब एंड झेलम। रचना दुआब जिहड़ा है वो केड़ी 2 रिवर्स दे विच लाई करदा है? रावी एंड चनाब। ठीक है, सो आप दुआब तो डिकोड कर सकते हैं कि जेड़ा एक रीजन है, एक जेड़ा दुआब है वो केड़ी 2 रिवर्स दे विच लाया करता है। ठीक है, सो इस चार्ट तो तुसी इजीली इसनु लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है द प्रेजेंट डे पंजाब जेड़ा उन्होंने 3 जोग्राफिकल रीजन्स विच डिवाइड किया गया है, माझा, दुआबा एंड मालवा, जेड़ा कि आप पहले कर चुके हैं। सो तुहानू मैं रिवाइज करा देनी है। माझा वास्ते तुहानू याद होएगी असीं एक टर्म कीती सी, मैं तुहानू याद कराई सी इहदी डिस्ट्रिक्ट्स याद करन लई, जी पैट याद है। सो तुसी जी पैट तो देखो कि तुसी ये वाली डिस्ट्रिक्ट्स जिहड़ियां है रिकॉल कर सकते हो या नहीं। ठीक है, एरिया जिहड़ा है वेस्ट टू रिवर ब्यास जिहड़ी है ओदे वेस्ट विच लाए करता है। इंपॉर्टेंट टाउन किहड़ा है इत्थे? अमृतसर। ठीक है, नेक्स्ट है दुआब, द एरिया फॉलोइंग बिटवीन सतलुज एंड ब्यास। सतलुज एंड ब्यास दे विच जिहड़ा एरिया है उसनूं असीं दुआबा कहने हैं। इंपॉर्टेंट टाउन्स किहड़े है? जलंधर एंड हुशियारपुर। ठीक है, हुशियारपुर तो हम बोलते ही तुहानू याद आंदा होया ना, हुशियारपुर, हुशियारपुर, हुशियार लोग, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो मालवा जेड़ा है लाइज ईस्ट टू रिवर सतलुज दे ईस्ट विच लाया करदा है। मोर ओवर तुहानू याद होगा मालवा विच असी टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ियां सीगियां। ठीक है, सब तो ज्यादा जेड़े नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ने वो मालवा विच ने ते सब तो रीसेंटली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट केड़ी है वो भी तुहानू मैं दस्सिया सी, वो भी मालवा दे एरिया विच ही इंक्लूडेड है।
तो ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਊਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ पंजाब। तो क्लाइमेट की ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੀਨਸ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਨ ਏਰੀਆ ਓਵਰ ਅ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫॉर ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵੈਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫॉर ਅ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਗਰੋ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਲੂ, ਯੈਲੋ, ਪਿੰਕ, ਗ੍ਰੀਨ, ਪਰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ, ਰੇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਕਵਰ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮੋਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਮੋਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਰੇਨਫਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਰੇਨਫਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, नेक्स्ट है द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट ਜਿਹੜੀ ਹੈ which influence the atmospheric conditions of an area। ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। that is rainfall, temperature, humidity, air pressure, wind, clouds and sunshine due to subtropic continental location। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਏਰੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਸੋ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਬ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਮੌਨਸੂਨ ਟਾਈਪ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ that is ਸਬ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਮੌਨਸੂਨ ਟਾਈਪ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਰ, ਰੇਨੀ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਸੀਜ਼ਨ। ਹੌਟ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਡ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ टू एंड ऑफ जून तक रहता है। ठीक है, रेनी सीजन केड़ा है? अर्ली जुलाई तो स्टार्ट होके एंड ऑफ सितंबर तक साडा रेनी सीजन रहता है। कोल्ड वैदर सीजन केड़ा है? जेड़ा जनरली दिसंबर दे विच स्टार्ट होके एंड इट एंड्स इन फैब्रुअरी। ठीक है, ये तो बेसिक सीजन ने जेड़े सानू सब नू पता होंदे आ। ठीक है, ट्रांजिशनल सीजनस केड़े होंदे आ? ट्रांजिशनल सीजन हुंदा है जदों असीं एक सीजन तो दूसरे सीजन दे विच जांदे आ। फॉर एग्जाम्पल गर्मी तो असी सर्दी च जा रहे हैं, सर्दी तो गर्मी जा रहे हैं, या गर्मी तो रेनी सीजन च जा रहे हैं, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਸੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਆਫ ਨਵੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮਾਰਚ ਟੂ ਮਿਡ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਸੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੌਟ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ? ਮਿਡ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੂ ਐਂਡ ਆਫ ਜੂਨ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸਕਰਾਊਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, with the northward shift of sun towards the tropic of cancer after the vernal equinox temperature जो है वो राइज करता है। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ northward shift of sun है, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਾਰਥਵਰਡ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹ ਸਭ ਕੇसेस ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰਮ ਮੇ ਟੂ ਜੂਨ। ਅ ਹੌਟ ਵੈਸਟਰਲੀ ਵਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਰੀਆ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾय एंड ऑफ जून। एंड ऑफ जून ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਰੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿੰਡਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, नेक्स्ट है इन पंजाब। पंजाब विच जेड़ा है अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, देखो ए इंडिया है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल जेडी ब्रांच है ऑफ द मॉनसून मीट टू गिव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस इन द ईस्टर्ली हिली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो ए जेड़ियां है मॉइस्चर लेके आंदी है, मॉडरेटिंग रेनफॉल दा जेड़ा है एक्सपीरियंस करदा है पंजाब इन द ईस्टर्ली डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, the amount of rainfall ਜਿਹੜੀ ਹੈ it decreases towards the west and southwest of the hilly districts। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ट्रायंगुलर ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਸੀਜ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਡ ਆਫ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲਡੈਸਟ ਮੰਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, the main reasons for excessive पंजाब ਜਿਹੜਾ ਹੈ excessive cold ਕਿਉਂ experience ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ point ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਦੇ moderating influence ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ excessive cold ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ experience ਕਰਦੇ ਹਾਂ। around February a cold winds coming from Caspian Sea and Turkmenistan bring cold wave along with frost and fog over the पंजाब। सो ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਵਿੰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰ ਵੈਸਟਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਧਰ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰੋਸਟ ਐਂਡ ਫੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द राबी क्रॉप्स। ओके, सो इस तरफ तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਇਸਚਰ ਡਰਿਵਨ ਵਿੰਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਰੇਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਬੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ऑटम सीजन की है पंजाब ਜਿਹੜੀ ਉਹ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया है टू सी विड्रॉल ऑफ मॉनसून इन ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਡਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਰੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। स्प्रिंग सीजन एट द एडवेंट ऑफ द मार्च टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली राइज करना शुरू कर देता है और विंटर सीजन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ फेड अवे होना शुरू हो जाता है। सो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ है स्प्रिंग सीजन ਨੂੰ एक्सपीरियंस करते हैं। सो स्प्रिंग सीजन ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ गर्मी तो पहले वाला ट्रांजिशनल पीरियड है एंड ऑटम सीजन ਕਿਹੜਾ है ਜਿਹੜਾ ठंड तो पहले वाला ट्रांजिशनल पीरियड है। ठीक है, ਹੁਣ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 83.4% ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। there is not much forest area in Punjab as much as it is ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈਨੀਅਲੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੈ। ਬਾਈਨੀਅਲੀ ਮੀਨਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, it is a premier national organization ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦੀ ਹੈ Union Ministry of Environment and Forest and Climate Change।
दे मॉनिटर द फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ द कंट्री पीरियोडिकली, कंट्री ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡੇਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर इन डिस्ट्रिक्ट्स। याद रखियो जेडी हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, देखो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 21.4% है। कितने? हुशियारपुर। एंड हुशियारपुर एक होर चीज विच अगे है, ठीक है, केड़ी की लिटरेसी विच अगे है। सेकंड जेड़ा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है वो कितने है? रोपड़ विच कितना? 19.3%। थर्ड हाईएस्ट कितने है? SAS नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर 12.9%। एंड लीस्ट जेड़ा फॉरेस्ट कवर एरिया है वो कितने है? फतेहगढ़ साहिब विच 0.32, ठीक है। सो याद रखियो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया जेड़ा है वो कितने है? हुशियारपुर। सो ये तुसी याद रखना है, हुशियारपुर, रोपड़ एंड SAS नगर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच। ये है फॉरेस्ट कवर ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। फैक्ट्स, पंजाब विच कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। याद रखियो नेशनल पार्क किहड़े हुंदे? जिहड़े प्रोटेक्टेड पार्क्स हुंदे जिन्हों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिहड़ी है वो डिक्लेयर कर दिंदी है और उस तो बाद उससे रहने वाले स्पीशीज नूं जिहड़ी है प्रोटेक्शन मिलती है। फैक्ट्स की है? देयर इज नो नेशनल पार्क इन पंजाब। पंजाब विच कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, जिहड़ी प्रोटेक्शन है कि जिहड़े वेरियस पार्क्स ने उन्हां नूं प्रोटेक्शन किन्नी को प्रोवाइड कीती जांदी है, सब तो ज्यादा जिहड़ी प्रोटेक्शन है वो नेशनल पार्क नूं मिलदी है। नेक्स्ट लेवल ते वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ स्टेट जोग्राफिकल एरिया जो है वो जड़ा है वो क्रॉप्स दे अंडर कवर्ड है। मीन मैक्सिमम एरिया जो है वो एग्रीकल्चर दे अंडर है एंड नॉट अंडर द फॉरेस्ट। कितना? 83.4% जो टोटल एरिया ऑफ द स्टेट है वो किदे अंडर है? एग्रीकल्चर दे। जदों ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ एग्रीकल्चर ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਹੈ? 40.38%, ठीक है। नेक्स्ट है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की होंगे? दीज आर द ट्रांजिशनल जोन्स बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। सो वेटलैंड्स की होंगे? वेटलैंड्स वो एरियाज होंगे है जिन्हां नूं असीं प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिंदे हां, ठीक है। इन्हां दी बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच हुंदी है, इत्थे वाइल्ड लाइफ बहुत रिच हुंदी है, ठीक है। सो साडे जिहड़े वेटलैंड्स है उन्हां नूं प्रोटेक्ट करन दे कुछ कन्वेंशनस बने हुए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कोई स्टडी आप स्टडी करते हैं, साडे कोल रामसर कन्वेंशन है। रामसर कन्वेंशन विच की है कि कुछ साइट्स है उन्हां नूं रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दिता जाता है तो उन्हां दी बायोडाइवर्सिटी, उन्हां दी रिच जिहड़ी वाइल्ड लाइफ है उसनूं प्रोटेक्शन दित्ती जाती है, ठीक है। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। रामसर जिहड़ी कन्वेंशन है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिन्हों साइन किया गया सी रामसर इन ईरान। सो इनू रामसर जिहड़ा नाम मिलिया है वो कित्थों मिलिया है? फ्रॉम द प्लेस जिथे साइन की गई सी ऑन 2 Feb 1971। सो हर साल 2 February नू जिहड़ा है आपां वो वर्ल्ड वेटलैंड डे जिहड़ा है वो मनाने आ, ठीक है। सो तुसी एक चीज होर मैनू रिकॉल करके दसो कि जिहड़ा 2021 दा वेटलैंड डे है ओदा थीम की है, ठीक है। सो साडे वास्ते थीम्स भी एग्जाम लिए याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। द अबव डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स जिहड़ी है इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कन्वेंशन। ये जिहड़ी डेफिनेशन है कन्वेंशन सानू दसदा है कि वेटलैंड डिक्लेयर करन लई की पैरामीटर्स ने कि असी पर्टिकुलर एरिया नू वेटलैंड डिक्लेयर करिए, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन हुण जिहड़ी रामसर कन्वेंशन है वो तो एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी सेट कीती है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे केड़े मेजर्स अडॉप्ट किए हैं ताकि असी अपनी कंट्री दे साइट्स नू जिहड़ा है वो प्रोटेक्ट कर सकिए। दिस बॉडी जिहड़ी है इसनू क्रिएट किया गया है वो केड़ी है? नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। इस बॉडी के अंडर इंडिया के जिन्ने भी वेटलैंड्स है उन्हां दा एक पूल बनाया गया है ते उन्हां दी डिग्रेडेशन ना होए इसलिए प्रॉपर मेजर्स, एडॉप्टिव मेजर्स लेते जाते हैं। इट इज ऑल्सो क्रिएटेड टू इंप्लीमेंट रामसर कन्वेंशन। सो रामसर कन्वेंशन जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ जिन्ने भी प्रोटोकॉल्स ने इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ताकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ਨੂੰ मीट कर ਸਕੀਏ, ठीक है। सो ਤੁਸੀਂ याद रखना है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वेटलैंड स्टडी करते हैं, वेटलैंड स्टडी ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ है एक इंटरनेशनल मेजर स्टडी करते हैं जिहड़ा की है रामसर कन्वेंशन एंड देन ਅਸੀਂ नेशनल स्टडी करते हैं जिहड़ा की किहड़ा है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है।
पंजाब विच टोटल कितने वेटलैंड्स है 21 वेटलैंड्स, 12 इनलैंड नेचुरल्स, 9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मैन मेड ने। टोटल एरिया ਜਿਹੜਾ है कितना कवर कर रहे ने, ਜਿਹੜੇ नेचुरल वेटलैंड्स है दैट कवर एरिया ऑफ 8.39 स्क्वायर किलोमीटर एंड मैन मेड ਜਿਹੜੇ ਨੇ 147.39 स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ वेटलैंड्स ਜਿਹੜੇ है ਉਹ कवर कर रहे हैं। पंजाब वेटलैंड्स ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस एज। पहला है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ਉਹ ਵਾਲੇ वेटलैंड्स जिन्हां ਨੂੰ रामसर साइट्स ਦੇ अंडर इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स डिक्लेयर किया गया है। नेशनल वेटलैंड, ठीक है। अदर है स्टेट वेटलैंड्स जिन्हां ਨੂੰ स्टेट्स ने इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है एंड अदर आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स, ठीक है। फर्स्ट है रामसर वेटलैंड्स, पहले आप पढ़ते हैं हरीके वेटलैंड। हरीके ਜਿਹੜਾ है वो लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड्स इन नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। एक केड़ी डिस्ट्रिक्ट्स विच स्प्रेड है, फिरोजपुर, कपूरथला एंड तरनतारन। सो ये साडा पंजाब है, ठीक है। मोस्टली जेडी इधर नू डिस्ट्रिक्ट्स आ रही ने, इस साइड साडा तरनतारन, अमृतसर, कपूरथला है, ठीक है। सो हरीके वेटलैंड जेड़ा है वो इन्हां 3 डिस्ट्रिक्ट्स विच स्प्रेड है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, किवें एग्जिस्टेंस विच आया, केडी 2 रिवर्स दा कॉन्फ्लुएंस है इत्थे, सतलुज एंड ब्यास रिवर्स ऑफ पंजाब, ठीक है। सो ये है हरीके वेटलैंड। हरीके वेटलैंड ਜਿਹੜਾ है वो मैन मेड वेटलैंड है। सो आप जिन्ने भी वेटलैंड्स पढ़ांगे तुसी ध्यान रखना है कि केड़ा वेटलैंड ਜਿਹੜਾ है वो मैन मेड है एंड केड़ा वेटलैंड ਜਿਹੜਾ है वो नेचुरल वेटलैंड है, ठीक है। बिकॉज ਇਹਦੇ रिलेटेड एग्जाम्स विच क्वेश्चन पूछे गए ने। रिवराइन एंड लोकस्ट्राइन वेटलैंड्स, लोकस्ट्राइन ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ लेक्स ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड होए। थ्रेटेंड स्पीशीज ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ IUCN रेड लिस्ट ਦੇ अंडर स्मूथ इंडियन ऑटर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ थ्रेटेंड स्पीशीज डिक्लेयर किया गया है वो इन्हां वेटलैंड वो इसी वेटलैंड दे विच पाए जाते हैं। फर्स्ट साइट ऑफ डॉल्फिन रिपोर्टेड फ्रॉम हरीके वेटलैंड्स कदों सी, दिसंबर 2007, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द हरीके वेटलैंड। नेक्स्ट है कांजली वेटलैंड्स। कांजली वेटलैंड्स ਜਿਹੜਾ है वो किथे सिचुएटेड है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कपूरथला। सो तुसी ਜਿਹੜੀ है डिस्ट्रिक्ट भी याद रखनी है, ठीक है। एंड ये केड़ी है, मैन मेड फ्रेश वाटर रिवरलाइन सिस्टम। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ मैन मेड है। इमेंस ये ਜਿਹੜੀ है सोशल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो भी ਸਾਡੇ ਲਈ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ है, गुरु नानक देव जी ਨਾਲ होली रिवर बैन ਦੇ ਬਾਰੇ। होली रिवर बैन ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ रिकॉल कर सकते हो, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ कि गुरु नानक देव जी ਜਦੋਂ डिसअपीयर हो गए ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਇਸੇ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ डिसअपीयर ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ उन्होंने बाहर आके क्या सी, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। सो जेड़ा कांजली वेटलैंड है, जेड़ा कि याद रखियो के फॉर कांजली, के फॉर कपूरथला, ठीक है। कपूरथला विच सिचुएटेड है। सो साडे सोशल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो भी ये जेड़ा वेटलैंड है साडे वास्ते इंपॉर्टेंस रखता है, कादे करके, बिकॉज ऑफ गुरु नानक देव जी, ठीक है। नेक्स्ट है रोपड़ वेटलैंड जेड़ा है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस किवें आया, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बराज एट द सतलुज रिवर, केडी सिटी ते नियर सिटी रोपड़, ठीक है। ये मैन मेड वेटलैंड है। सो याद रखियो ऐसे 3 वेटलैंड्स जेडे वो कवर कर लेते हैं। तीनों वेटलैंड्स जेडे है हरीके, कांजली एंड रोपड़ वेटलैंड जेड़ा है केड़े वेटलैंड्स है, मैन मेड वेटलैंड्स है। ये नेचुरल नहीं है, याद रखना, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस होवे किसी भी तरीके तुहानू याद रहना चाहिए है कि मैम ने जेडे पहले वेटलैंड्स 3 पढ़ाए सीगे वो मैन मेड सीगे, ओके, ठीक है। नंगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जेडे हुण आपां पहले 3 वेटलैंड्स पढ़े है, वो वेटलैंड जेडे ऑलरेडी साडी रामसर साइट्स विच रजिस्टर्ड सीगे। रिसेंटली 2020 विच 10 जेडे वेटलैंड्स है उन्हां नू इंक्लूड किया गया सीगा लिस्ट, इंडिया दे 10 वेटलैंड्स नू लिस्ट विच इंक्लूड किया गया सीगा, ठीक है। तो उहदे विचों 3 जेडे वेटलैंड सीगे वो साडे पंजाब दे सीगे। सो ये तुहाडे वास्ते ऑल्दो मोर इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि साडा पंजाब दा करंट अफेयर भी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, किथे सिचुएटेड है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, ठीक है। नंगल डैम जेड़ा है इट इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड द रिवर सतलुज ते आर्टिफिशियल लेक बनांदा है जिन्हों कि असी नंगल लेक कहने आ, ठीक है। इसनू प्रोटेक्टेड एरिया है, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर कर दिता गया सी इन 1964, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट नंगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। एक केड़ी है अगेन मैन मेड वेटलैंड है। याद रखियो हुण आपां चौथा वेटलैंड पढ़ रहे हैं, ये 2020 विच ही वेटलैंड डिक्लेयर होया है, मोरोवर ही केड़ा है मैन मेड वेटलैंड। दिस सैंक्चुरी इज इंपॉर्टेंट हैबिटेट। इत्थे जेडे है
इंपॉर्टेंट हैबिटेट है कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज दे लाइक स्कैलरी, एंटीएटर एंड पाइथन। ठीक है, ये जेडे है साडे थ्रेटेंड स्पीशीज इत्थे एग्जिस्ट करदे है। इट इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ पंजाब। याद रखियो ये जेड़ा वेटलैंड है ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ पंजाब है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। इसनू भी रिसेंटली इंक्लूडेड किया गया है। ये केड़ा है 185 किलोमीटर स्ट्रेच करदा है ब्यास रिवर ते प्राइमरीली केडी डिस्ट्रिक्ट्स विच जेड़ा एग्जिस्ट करदा है हुशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला एंड तरन। ठीक है, ये जेड़ा है नेचुरल वेटलैंड है। सो याद रखियो कि जेड़ा ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है वो मैन मेड नहीं है, नेचुरल वेटलैंड है। द रिजर्व आल्सो होल्ड्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दी जेड़ी एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन जेड़ी है ओदी पॉपुलेशन भी इसी कंजर्वेशन रिजर्व दे विच है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जेड़ा की है साडा नेचुरल वेटलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट है केशवपुर म्यानी रिजर्व जेड़ा है ये वेटलैंड है। ये किथे लोकेटेड है? स्टेट ऑफ पंजाब, केडी डिस्ट्रिक्ट विच? गुरदासपुर। ठीक है, सो साडे डिस्ट्रिक्ट याद रखनी इंपॉर्टेंट है। एंड केड़े एरिया विच फॉल्स अंडर द बारीदुआ मींस ब्यास एंड रावी दे विचले एरिया विच एग्जिस्ट करता है। एंड केड़ा वेटलैंड है? नेचुरल वेटलैंड है। ठीक है, सो ये जेडे है वेटलैंड जेडे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तुहानू ओदा एक चार्ट दिता गया, सो तुसी इस चार्ट तो लर्न कर सकते हो। ठीक है, हरीके वेटलैंड जेड़ा है वो मैन मेड है। देखो फर्स्ट जेडे 4 वेटलैंड्स ने वो मैन मेड है। हरीके तुहानू केड़े-केड़े एरियाज विच मिलेगा तुहानू दस्सिया सीगा। इस तरह पंजाब दा एरिया है एंड इधर वाले एरियाज विच फिरोजपुर, कपूरथला, तरन। ठीक है, कंजली वेटलैंड जेड़ा है केतो कंजली, केतो कपूरथला मैन मेड वेटलैंड है। रोपड़ जेड़ा है मैन मेड है। रोपड़ वेरी इजी, रोपड़ एरिया विच ही लाए करेगा। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जेड़ी है अनंतपुर साहिब मैन मेड है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जेड़ा है नेचुरल है एंड इट स्ट्रेचेस 185 किलोमीटर्स टू द ब्यास रिवर। नेक्स्ट है केशवपुर म्यानी जेड़ा है वो नेचुरल है एंड केड़े एरिया च लाए करदा है? गुरदासपुर। ठीक है, सो इस चार्ट तो तुसी इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये साडे जेड़े 3 सीगे ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीगे ते जेड़े साडे करंट अफेयर वाले रिसेंटली एडेड ने वो ए वाले ने। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल वेटलैंड। नेशनल वेटलैंड विच तुसी की याद रखना है रंजीत सागर वेटलैंड जेड़ा है मैन मेड है एंड किथे सिचुएटेड है? गुरदासपुर। ठीक है, तुहाडे लिए डिस्ट्रिक्ट याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रंजीत सागर वेटलैंड जेड़ा है वो किथे लोकेटेड है? गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट विच। ओके, नेक्स्ट है स्टेट वेटलैंड्स। पंजाब दा जेड़े स्टेट वेटलैंड्स ओदे विच तुहाडे डिस्ट्रिक्ट्स याद करनी इंपॉर्टेंट है। जस्तरवाल वेटलैंड जेड़ा है वो नेचुरल है एंड अमृतसर सिचुएटेड है। कानूवान चाम वेटलैंड जेड़ा है नेचुरल एंड गुरदासपुर। मंड भरताला वेटलैंड जेड़ा है SBS नगर विच सिचुएटेड है एंड दोलबाहा वेटलैंड जेड़ा है वो किथे सिचुएटेड है? हुशियारपुर एंड मैन मेड है। ठीक है, सो तुसी इनु इन्ना वेटलैंड्स नु इना चार्ट्स तो लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बीर एस1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सो ये तुहानू याद करने का एक तरीका दसदी है। जिन्ने भी बीर वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने ना, देखो बीर बंसन, बीर दोसांझ, बीर महसवाला। ठीक है, ये किथे लाए करदे ने? पटियाला विच, पटियाला डिस्ट्रिक्ट विच सारे लाए करदे हैं। ठीक है, सो तुसी इथों दी याद रखियो कि जेडे बीर वाले जिन्ने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जेडियां है वो पटियाला सिटीज विच, पटियाला दे जेडी डिस्ट्रिक्ट है ओदे विच लाए करदी हैं। ठीक है, सो ये याद करने का एक इजी वे है। नेक्स्ट है हरीके लेक जेड़ा है निहालपुर विच है। तकनी रहमापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जेडी हुशियारपुर विच है। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किथे है? अबोहर दे विच। एंड जेडी साडी नेक्स्ट है जज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो किथे लाए करदी है? बचौली एरिया विच। ओके, एंड नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जेडी है वो किथे है? नंगल दे। ठीक है, सो तुसी इन्हां तो इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स। कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स दे विच एक बेसिक पहले मैं तुहानू डिफरेंस दस देनी है। कंजर्वेशन रिजर्व्स किहड़े हुंदे हैं? ये वो एरियाज हुंदे हैं जिन्हां नू कंप्लीटली ओन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। वेयर एज कम्युनिटी रिजर्व जेडे होंगे हैं ये वो रीजन्स होंगे हैं जिन्हां नू ओन करदी है प्राइवेट कम्युनिटी। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व्स किहड़े है कि गवर्नमेंट किसी एरिया नू कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिंदी है एंड उस तो बाद ओदी कंजर्वेशन लई मेजर्स अडॉप्ट करदी है।
whereas community reserve ਵਿੱਚ ਇੱਕ particular community ਜਿਹੜੀ ਹੈ, private community ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। whereas community reserve ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੋਲੰਟਰਲੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਚੰਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਿਆਸਵਾਨ SAS ਨਗਰ, ਪਾਨੀਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਰਖਸਰਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਰੋਪੜ, ਬਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਰਿਵਰ ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਇਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸਿੰਬਲਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਲਬੇਗੀਆ ਸੀਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਜ਼ਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸੀਡਿਊਸ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਸਮ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਬਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3500 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬਲੈਕ ਬਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਅਬੋਹਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਅਬੋਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਜ, ਨਾਰਦਰਨ ਗੋਸ਼ਵਾਕ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਦੇ, तो ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਸੀਪੀਟਰ ਜੈਂਟਿਲਿਸ ਕੌਮਨਲੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਸ਼ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਜੈਨਸ ਐਸੀਪੀਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਐਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ 2019 ਦਾ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੇਟ ਐਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਡॉल्फिन। ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ। ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਬਕ। ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नेक्स्ट है soil. The study of soil is known as pedology and one who study the soils is known as pedologist. ठीक है, जो ਤੁਸੀਂ soil ਦੀ study ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ pedology ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ pedology ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ soils ਨੂੰ study ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, pedologist। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ term ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, soils of Punjab on the basis of texture and climate, topography, denudation, soils of ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਹੈਡਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਔਰ ਬੀਚ ਸੋਇਲ, ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੋਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੋਇਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਚ ਸੋਇਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੱਦਰ ਪਲੇਨਸ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਹਿਊਮਸ ਐਂਡ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਕਲਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਲ ਟੂ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਬਰਾਊਨ। ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪੈਡੀ, ਵੀਟ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੀਚ ਸੋਇਲ। ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 25% ਆਫ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਨਾਲ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਮੀਨਸ ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਚਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
पंजाब का कुछ रीजन है इस तरफ जिहड़ा एरिया है मालवा रीजन जिथे साडा लुधियाना लाई करदा है, ठीक है, उत्थे मिलता है। ऑल्सो फाउंड इन एसबीएस नगर ते सदਰਨ पार्ट्स ऑफ हुशियारपुर, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਲਰ ਕੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ रेडिश टू येलो एंड क्रॉप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ग्रो करती हैं दैट इज wheat and paddy, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लोमी सॉइल। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल ਜਿਹੜੀ ਹੈ इट इज फाउंड मोस्टली इन साउथ ईस्टर्न ऑफ पंजाब। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NPK ਵੀ ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਟੂ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ दैट इज wheat, cotton, millets and pulses। डेजर्ट सॉइल 11% ऑफ द एरिया ऑफ स्टेट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 11% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ ਨਾਲ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਪੈਚਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਦਰਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ इस तरफ वाला एरिया ये जड़ा है ये लेस फर्टाइल सानू मिलदा। सो सानू डेजर्ट सॉइल जेडी है सदर्न पैच ऑफ पंजाब ते मिलदी है, सम पार्ट्स ऑफ जलंधर एंड गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पुअर इन ह्यूमस एंड NPK। कलर किथों वेरी करदा है येलो टू लाइट ब्राउन एंड जेडी साडी क्रॉप्स ग्रो करदी हैं सब तो पहले तो कोर्स, क्योंकि डेजर्ट सॉइल है तो कोर्स ग्रेन्स ग्रो करनगियां बाजरा एंड फॉडर एंड अदर जेडी सॉइल दी ट्रीटमेंट करन तो बाद असी अदर क्रॉप्स जेडियां ओ किड़ियां ग्रो कर सकदे हां कॉटन, citrus fruits, oil seeds and wheat, ठीक है। so this is about the desert soil। next है कांडी soil। lowest stacks of Punjab शिवालिक poor है किस कंटेंट विच potash and lime। कलर किथों वेरी करता है brown to light grey और मेजर जेडियां क्रॉप्स ने किड़ियां मेजर जेड़ा क्रॉप्स है इथे मेजर क्रॉप्स ग्रो नहीं करदियां। मेजर जेड़ा एरिया है वो फॉरेस्ट दे अंडर कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है सियरोजोम ਜਿਹੜਾ ਹੈ 25% ऑफ एरिया ऑफ ਜਿਹੜਾ स्टेट है ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कवर्ड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ है अगेन ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡੀ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ठीक है। एंड बारी दुआब ਜਿਹੜਾ है, ठीक है, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। कलर वेरी करदा है ग्रे एंड ਜਿਹੜੀ क्रॉप मेन क्रॉप ਸਾਡੀ ग्रो ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ है wheat, ठीक है। नेक्स्ट है पॉडजोलिक सॉइल ਜਿਹੜੀ है अपर टाइप्स ऑफ शिवालिक भी मिलती है। पुअर कंटेंट है ह्यूमस ਦਾ कलर ਜਿਹੜਾ वेरी करदा है रेडिश ब्राउन टू ऑलिव एंड ਇੱਥੇ क्रॉप्स ग्रो नहीं करदियां। मेन ਜਿਹੜਾ एरिया ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ कवर्ड है फॉरेस्ट ਦੇ ਅੰਦਰ फॉरेस्ट सॉइल ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। नेक्स्ट है सैलाइन। सैलाइन सॉइल कितने मिलती है सेंट्रल एंड वेस्टर्न पैचेस ऑफ द सेंट्रल एंड साउदर्न पंजाब। पुअर किदे विच है नाइट्रोजन एंड कैल्शियम विच कलर ह्यूमस एंड मेन क्रॉप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ कॉटन एंड सीरियल, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੌਡਜ਼ੋਇਕ ਐਂਡ ਸੈਲਾइन ਸੋਇਲ ਹੈ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।